Hello, everybody. I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm live. In the description, I have already. This video stream is for uh, making some of my students comfortable regarding their hardcore query, like how to prepare for NET JRF English Literature. So let me see. Okay. So Priya Singh, yes, keep responding. Good morning. Though at a very short notice, I'm taking this class because some of my students asked me, like, better you take Facebook Live so that maximum number of students be benefited. Am I audible? Purti is there. Supriya Singh is already there. Good morning. Good morning. And let the other students should also come. You can share this. If there is a concept of sharing it, you can share it so that the other students of Jaswendra Singh ji, hello. Okay, it looks very awkward, in the live class that the person who is speaking is looking in blankly in the camera. But I'm waiting for all the students to come so that we can start the session. And meanwhile, I say Ram Ram, Namaskar, good morning, Sat Shri Akal. Salam Alaikum. Pawan Kumar is watching. In last 1 month, what I have done, that I have added most of the students with this particular page, FB page. Okay, let me start then. Yesterday and some days before yesterday also, many students continuously have been asking me, like, how to prepare for NET and JRF exam. As you all know that I have qualified this exam for 14 times, and I have qualified JRF for 3 times, and I'm double MPhil. I'm already a PhD holder. So when I prepare somebody, as my offline students are already there, so they know me very well, that I go in depth, because without going in depth, one cannot exactly qualify this exam. But now, because it is education industry, we call it, Rameshwar Meghji Namaskar, and as you all know that this education field has become an industry now. And in this industry, I take it in a very positive manner. Suprabhat. I take this word in a very positive manner. You all know that I joined the college and universities earlier, and then I left that, and for last 20 years, in a very passionate manner, I have been running my own institute, Cosmos, and most of you have already seen the kind of notes I have been furnishing. But hello, Naveen Shekhawat, my inspiration. So I planned that let us not take this word industry in the negative manner. And you all know it very well that thousands of myriads of students get benefited out of this platform, this social media and all. So let us talk today that there are two methods. There are parallel methods that one can go in depth also while he or she is studying, and there are certain capsule forms also where somebody can go less in depth and still qualify this exam. But being a very mature teacher now, I'm not a youngster, so I would always be asking you people to okay, there is nothing wrong when we think from this point of view that we have to qualify the exam only. But I think qualifying the exam should not be the motto. Exam will automatically be qualified. Uh,
I request you all to please share this videos, the link of this page to your friends so that maximum number of students can listen to me. And I promise you from tomorrow, I'll always be live, daily live. We'll be teaching poems, we'll be teaching dramas, we'll be teaching criticism, we'll be teaching, English in India and the I'll be discussing so that in this lockdown period, maximum number of students can be benefited. I'm not saying personally hello to everybody, so please don't get confused and don't mind. So I have prepared certain points like, how to prepare. Now there are two kinds of students. One student is already preparing since his graduation. He or she has already that in mind that, he or she would qualify this exam. And there are certain students who start very late in life and they marry also, they do the job also. Like in the morning I had messages, 4 or 5 messages from South India that these girls were have already been placed in the colleges. They already are doing jobs and they have small children also, they're mothers now, and they want to prepare. So for different people I will be suggesting different strategies, but only some major strategies are almost the same. Allow me to speak Hindi also in between so that I can convince some of my students and attract them also. So can there can be a bond between the teacher and student that he is in our level. Should I be bilingual also? Firdaus Sofinaz, hello. पहली बात, सबसे part I'll be bilingual, I'll be translating the things. How to, पहली चीज है, the first thing is that you have to follow a teacher. If you don't follow a teacher, बिना गुरु ज्ञान नहीं. तो उस बात को मैं पकड़ते हुए आई एम टेलिंग यू द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि सबसे पहला कि अगर आपको नेट की कोचिंग नहीं करनी है या नेट की कोचिंग करनी है, नेट का एग्जाम क्लियर करना है, जेआरएफ क्लियर करना है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चन पेपर्स. आप इसको पॉइंट भी बना सकते हो. द फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व 5 क्वेश्चन पेपर्स. आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ दैट जब पहली बार मेरा एग्जाम क्लियर हुआ तो उससे पहले मैंने देखा कि I was already, MPhil. So I found like solve this paper. So in those days there were 3 papers. First, the common paper you all know, and second paper was for 50 objective questions were there, and then written exam was there. So मैंने सबसे पहले क्या किया? I first of all solved second paper, and I found that a very less number of questions I was able to attempt. तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ, आई गॉट टू नो दैट आई हैव टू वर्क हार्ड. एंड फिर मैंने कैसे काम करना स्टार्ट किया वो अब एक हिस्ट्री है, बट अभी आप लोगों को ऐसा समझना है कि सबसे पहला काम है दैट हमें कम से कम बिगिनिंग में, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी बुक उठा लीजिए, डाउनलोड ऑल द पेपर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम. यू शुड डू वन थिंग, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस. अगर 5 क्वेश्चन पेपर्स भी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो सबसे पहले एक पेपर आप सॉल्व करें, आज ही सॉल्व करें और मुझे कल रिपोर्ट करें कि आपने जब वो व्हेन यू सॉल्व द वेरी फर्स्ट पेपर, अभी जो फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉल्व द पेपर, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपको कि आप अभी जो पेपर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो उसमें 100 क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो मैं आपको उसकी सलाह नहीं दे रहा हूँ. आई एम सेइंग लाइक सॉल्व अ पेपर से ऑफ 2012 एंड बिफोर दैट, जिसमें सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चंस होते हैं. सो टाइम भी आपका कम लगेगा, यू विल कंज्यूम लेस टाइम, एंड तो आप सॉल्व करें और ये देखिए कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके 100% श्योरिटी के साथ सॉल्व हो रहे हैं. ऐसा लेवल वी हैव टू इम्प्रूव. जैसे आपने पेपर सॉल्व किया, जैसे आपने पेपर को स्टार्ट किया, तो जैसे आपको दिखा कि भाई चौसर रोट इन दिस लैंग्वेज, और उसके बाद उन्होंने 4 डायलेक्ट्स के नाम लिख दिए. अब आपको अगर एग्जैक्टली मालूम है तो आप टिक मार्क कर दोगे कि भाई चौसर रोट इन दिस लैंग्वेज और इन दिस डायलेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि आपको पिन पॉइंट करके क्लियर कट कितने आंसर्स आते हैं, इस चीज को आप चेक करें. सबसे पहले आज ही करें ये काम जो स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ना चाहते हैं. ऑनलाइन बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं ऑनलाइन, और अब तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में. तो मेरे से जुड़ जाओगे तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर हो जाएगा.
जेआरएफ भी क्लियर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा मेरे साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बताओ कि आप लोगों को एक पेपर सॉल्व करना है। मैंने तो 5 कहा है, आप एक बार एक पेपर सॉल्व करके देखिए। जैसे ही आप पेपर सॉल्व करेंगे आपको दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाएगा। यू विल कम टू नो व्हाट इज योर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु प्रिपेयर इन माई इंस्टीट्यूट फॉर एमए प्रीवियस और फाइनल, एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स हु आर appearing in graduation also, they are very brilliant. They get more than sometimes 65%, 70%, 80% marks in their post graduation and graduation. लेकिन जब वो पहला पेपर सॉल्व करते हैं तो उनको रिजल्ट नहीं मिलता है, उनको लगता है वो मुश्किल से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो अब अंदाजा लगाइए कि इसका मतलब है कि दैट्स जो पूरा सब्जेक्टिव रीडिंग होती है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड ऑब्जेक्टिव रीडिंग इज डिफरेंट थिंग। तो द फर्स्ट स्टेप इज सॉल्व पेपर्स। उसके बाद है कि आपको क्या नहीं आता। यू कम टू नो, यू विल रियलाइज कि अरे मुझे ये चीज नहीं आती, मुझे वो चीज नहीं आती। अच्छा, एक पेपर सॉल्व करने से ये आइडिया आपको क्लियर नहीं होगा, बिकॉज it is also a matter of chance also sometimes. For example, you had Hamlet in your course, तो आपको Hamlet का क्वेश्चन उसमें दिख गया और आपने सॉल्व कर लिया, then you get a wrong impression of yourself that कि मुझे तो इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो गए। That's why I am saying 5 पेपर आपको सॉल्व करने। तो अभी आपको ये आइडिया हो जाएगा कि शेक्सपियर से रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, स्पेंसर से रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में से रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, वो वर्क्स के सीक्वेंस के कितने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्योंकि जब स्टूडेंट ऐसे बोलता है मुझे कि वो तैयारी करना चाहता है नेट और जेआरएफ की, लेकिन मैं देखता हूं कि उसके पास बेसिक आइडिया नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें या कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अगर हम कोई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड फैकल्टी से हम कोचिंग ले रहे हैं, तो अगर वो बेसिक बताने बैठ जाएगा तो आपका बहुत कीमती टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियोस मतलब लाइव क्लासेस ले रहा हूं ताकि आप लोग इस तरह से स्टार्ट करना मतलब शुरू करें। आप अपनी कमजोरी को पहचानें, ये थर्ड पॉइंट है कि जब आपने पेपर सॉल्व किया तो आपको ये मालूम चलना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी कमजोरी क्या है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझे बताते हैं कि उनको किंग्स के नाम याद नहीं है। There are other students who tell me that they don't know the basic aspects of the literary ages. कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ये राइटर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो उसका आंसर ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपको क्या नहीं आता। आप उसकी लिस्ट भी बना सकते हैं। आजकल हम इतने जल्दबाजी में हैं कि बच्चे मुझे जब ज्वाइन करते हैं तो वो यही सोचते हैं कि हर चीज टीचर करके दे दे, और मैं तो बहुत खुशी से करके देने को तैयार भी हूं। मैं पीडीएफ बना के दे देता हूं, मैं नोट्स दे देता हूं, लेकिन केवल नोट्स लेने से ही काम नहीं चलेगा ना, उनको अल्टीमेटली पढ़ना भी पड़ता है। तो क्या करें, सबसे पहले पेपर सॉल्व करें, अपनी कमजोरी को पहचानें कि हमें किस एरिया की चीज ज्यादा नहीं आती। कई बार तो हंसी की बात है कि कई स्टूडेंट्स ब्लैंकली ये कहते हैं कि सर हमें कुछ नहीं आता, वी आर जीरो, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होता है, हमने ग्रेजुएशन किया हुआ होता है। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप एवरेज नहीं है। पहली बात तो इसको दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप एवरेज नहीं है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप होते हैं मोर देन एवरेज। एक बात और कहनी है मुझे कि जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आप केवल उसको पोस्ट ग्रेजुएशन मत कहिए, आप उसको ऐसे बोलिए मास्टर्स है। जैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था तो आई वाज डैम सीरियस। मैं सारे दिन पढ़ता ही रहता, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करता रहता कि मैं मास्टर बनने जा रहा हूं, मास्टर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो मास्टर का मतलब यू हैव कमांड, यू हैव मास्टरी ओवर दैट सब्जेक्ट। तो मास्टरी जब किसी सब्जेक्ट पे होती है बच्चों, तो फिर आपको कौन रोक सकता है नेट और जेआरएफ क्लियर करने से? ये रटने का एग्जाम नहीं है, ये गलत फहमी है कि हमें इसे रटना है। हमें वी हैव टू क्लियर अ लॉट मच वोकैबुलरी। एक जब बात चल रही है, हम लोग जुड़े हुए हैं आपस में, तो कुछ बातें और करने में क्या बुराई है। देखिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़ते हैं, मैं उनको स्ट्रिक्टली इस लाइन पे ले आता हूं कि दे स्टार्ट इंप्रूविंग देयर वोकैबुलरी। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी बेटी को लॉर्ड ऑफ फ्लाइज पढ़ने के लिए दिया कि इसको पढ़ो, तो इमीडिएटली विद इन 1 day शी कंप्लीटेड द नॉवल एंड गेव इट बैक टू मी कि मैंने पढ़ लिया। तो मैंने उससे फिर कुछ मैंने बिल्कुल पहला ही सीन पूछ लिया कि नॉवल स्टार्ट कैसे होता है। तो देन शी डिड नॉट आंसर उसको, क्योंकि स्किप करके रीड करने की आदत पड़ी हुई है बच्चों की कि जब हम नॉवल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस कहानी जान लो, मेजर स्टोरी क्या है, स्किप करते चले जाओ।
आप लोग रिस्पॉन्ड करते जाइए, आप केवल हाई मत बोलिए। वी आर क्वाइट इंटरैक्टिव। फेसबुक पे आने का मतलब ही यही है कि हम इंटरैक्टिव हो जाएं। मैंने तो फोन को फिक्स कर रखा है, बट योर फोन इज इन योर हैंड, यू कैन टाइप। आप मुझे बताइए कि क्या हम स्किप करके रीड करें? अगर हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं तो हमें स्किप करने की जरूरत नहीं है। ये माइंड का मैकेनिज्म होता है। मेमोरी के ऊपर मैं कभी और लेक्चर दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी में जाने की चीज यही है कि हम रीड कैसे कर रहे हैं। तो वो एक डाइग्रेशन की चीज होगी कि भाई रीड क्या करना है, वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें। क्यों आपको कोई चीज समझ कब नहीं आती है? आप मुझे बताइए, आप कब कब कहते हैं व्हेन यू कंप्लेन दैट वी डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि कोई लेक्चर अटेंड करके बाहर आया यार समझ नहीं आया। कभी मैंने ज्यादा इंग्लिश में बोल दिया तो सम पीपल से कि भाई आप बाइलिंगुअल हो जाओ। कोई बात नहीं, टीचर्स तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, टीचर तो फादर की तरह होते हैं, माँ की तरह होने चाहिए, माँ की तरह होते हैं ज्यादातर। और वो जैसा बच्चा चाहता है उसका फेस रीडिंग देखते ही उनका पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। मेरा तो पर्टिकुलरली बदल जाता है। मैं तो क्या करता हूं, जब मेरा स्टूडेंट का मूड बदलता हुआ दिखता है ना कि अरे रे इसका मुंह उतर गया, बेचारा नहीं पा रहा है, चलो कुछ ऐसा करते हैं, इसको समझा देते हैं। तो वो बड़े कंपैशनेट होते हैं टीचर, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। लिटरेचर के टीचर तो ज्यादातर सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो क्या करें, अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। देखिए, स्किप करते हुए वो बच्चा पढ़ता है जिसको पढ़ने की आदत नहीं है। अच्छा, अब यू आर ऑलरेडी द सॉलिड मटेरियल, हमारे हिंदी में इसको बोलते हैं पक्के घड़े। आप ऑलरेडी पक्के घड़े हैं। हाँ बिल्कुल, रोहित जी कह रहे हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन आई डोंट गेट मीनिंग। बिल्कुल। तो मैंने बताया ना आपको, एक और वीडियो में जब बना रहा था तो मुझे एक बात शेयर करने का मौका मिला। बेन ऑकरी का नाम सुना है आपने? द फेमिश रोड जिन्होंने लिखी है, शायद फेमिश रोड उन्हीं की लिखी हुई है। या तो a lot of grasp when we go through the novel drama, और very nice, correct। विपिन कुमार जी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, he is agreeing with, और ये सही बात है, क्योंकि मैं और आप क्या है, हम लोग हैं, हम है फ्यूचर वाला भारत, है ना। ये इंडिया बोल रहे हैं, आपस में इंडिया बात कर रहा है, क्योंकि जैसा टीचर क्लास में पहुंचेगा वैसा ही बच्चा बना देगा। अब देखिए ना, हमारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में अगर बेस्ट टीचर्स पहुंचे हैं तो वो उनका माइंड मोल्ड कर देते हैं, दे मेक देम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ टीचर्स। जैसा टीचर होता है, जैसा गुरु वैसा चेला। व्हाट दैट हैपेंस व्हेन वी आर नॉट गुड एट। यस, उर्मिल बोल रही है कि जब हमारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं। अब अच्छा, क्वेश्चन क्या है मेरा, मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूं? मैंने पॉइंट्स तो बहुत सारे बना रखे हैं, मैं अभी फटाफट बोल दूं और वीडियो खत्म कर दूं, ऐसा नहीं है। मैं रोज 10 बजे आऊंगा और आप लोग और मेरे से जुड़े। वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। वोकैबुलरी इंग्लिश में बड़ी खतरनाक होती है, एक वर्ड के कई कई मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर वर्ड है, डॉक्टर का मतलब पीएचडी भी होता है, डॉक्टर का मतलब फिजिशियन भी होता है। डॉक्टर एज अ वर्ब का मतलब टेम्परिंग विद समथिंग, लाइक ही डॉक्टर्ड माय ड्रिंक्स, या ही डॉक्टर्ड द डॉक्यूमेंट्स, फोर्जरी जिसको बोलते हैं। तो किस तरह से कोई वर्ड यूज हो रहा है, ये तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन वर्ड ओनली। लाइक सपोज एक वर्ड आपको क्लियर नहीं है, दैट थॉमस हार्डी वाज एन अमेलियोरिस्ट। तो अब अमेलियोरिस्ट का क्या मतलब है, वहां पे किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज किया गया है। या जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि द बार्ड ऑफ एवन, तो अगर किसी को बार्ड का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम नहीं है कि भाई बार्ड कब यूज करते हैं, तो बार्ड वो सेंस समझ ही नहीं पाएगा कि बार्ड मीन्स पोएट। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द वर्ड पोएट एंड बार्ड। बार्ड बोलते हैं जिसमें विजनरी पावर होती है, तो विजनरी पावर हर पोएट में नहीं होती है। मैं भी कविता लिखता हूं, बट आई एम नॉट अ बार्ड, आई एम नॉट अ पोएट एट ऑल। तो जैसे हमारे यहां पे बोलते हैं महाकवि, कवि और महाकवि में जैसे जो अंतर है वो बार्ड और पोएट में अंतर होता है। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि वोकैबुलरी को हम कैसे क्लियर करें। मैं ग्रामर की और अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं कि कैसे अच्छा, ये रोज का काम है। ये नेट कैसे क्वालिफाई करें कि अंदर ये लेक्चर कुछ बच्चे सुनते ही भाग जाएंगे कि ये तो बेकार लेक्चर दे रहा है, क्योंकि ये क्विक कर रहा है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पके हुए फल जो बाजार में तुरंत पका दिए जाते हैं सेहत के लिए हानिकारक है। फास्ट फूड जो कि फास्ट फूड की दुकानों में मिलता है वो बिल्कुल सेहत खराब कर देता है। तो ध्यान रहे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। रेस को जीतना है, ये रैट रेस है, बिल्कुल है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। तो मैं तो 20 सालों से सिलेक्शन दे रहा हूं, खुद एग्जाम क्लियर कर रहा हूं।
मैं झूठ ही नहीं बोल सकता, मैं आपको हमेशा एक सही सलाह दूंगा, और केवल सलाह नहीं दूंगा, मुझसे जुड़ोगे तो मैं आपको मंजिल तक पहुंचा दूंगा। मैं ये कॉन्फिडेंस केवल कागजी कॉन्फिडेंस नहीं है, या इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उधर बैठे हो, यू कैन टच मी एंड मैं फालतू में बोल रहा हूं। ये एक फैक्ट है। मैं एकदम डांट करके स्टूडेंट को कहता हूं कि इस पोएम का असली मीनिंग बता। तो ऐसे करके हमें थोड़ा सा अपनी वोकैबुलरी को सॉलिड करना है। डेली डेली कर सकते हो आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। डेली आप अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहिए, धीरे 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 आप देखेंगे। अच्छा, वोकैबुलरी को इंप्रूव करने में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं करें। हम जो पोएम पढ़ रहे हैं, जो नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें जो मीनिंग आ रहे हैं, बस उनको या लिखते चले जाएं, या उनका एक अलग से एक कॉपी बना लें, उसको सोते वक्त हल्का सा रिवाइज कर लें। ये एक बड़ा अच्छा तरीका हम मानते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। अब आते हैं कि एक स्टूडेंट जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नेट की तैयारी कैसे शुरू करनी है, वो सबसे पहले एक काम करे, अपना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस उठाए। जैसे वो अपने ग्रेजुएशन का सिलेबस उठाएगा तो उसे पता चलेगा फर्स्ट ईयर में कौन सी पोइट्री और प्रोज की बुक्स थी, सेकेंड ईयर में कौन सी थी, फाइनल ईयर में कौन सी थी। तो सबसे पहला तरीका है अपने ग्रेजुएशन की बुक्स का एक बार उसको रिकैपिचुलेट कर लें। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम ये काम मुश्किल से 4 दिन में हो जाएगा कि अच्छा ये एलिजाबेथन एज की पोइट्री आ रखी है, ये मेटाफिजिकल एज की पोइट्री आ रखी है। आपको पता है कि थ्रू आउट इंडिया जितना भी ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है, इन दैट सिलेबस वी ऑलवेज हैव दीज काइंड ऑफ बेसिक राइटर्स। शेक्सपियर का एक ड्रामा होता है, उसके पहले इंट्रोडक्शन होता है, एंथोलॉजीज होती है, उनमें इंट्रोडक्शन लिखा होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ो। ऑल द एडिटर्स व्हेन दे राइट और व्हेन दे कंपाइल अ बुक, दे ऑलवेज राइट एन इंट्रोडक्शन। यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, कहने का मतलब है। देखिए नाजिर साहब, मैंने जिस तरह की बुक्स के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो दोस्त अभी जो मुझे देख रहे हैं वो एक तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल का जो लिंक है मैंने इस पेज पे दे रखा है, उसको ढूंढ लीजिए। मुकेश पारिक के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, कॉस्मोस के नाम से सर्च कर सकते हैं, और यूजीसी नेट फॉर इंग्लिश लिटरेचर बाय मुकेश पारिक, ये मेरे यूट्यूब का नाम है। अब मैंने वहां पे कम से कम मेरे ख्याल से 10 वीडियोस ऐसे डाल रखे हैं कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन से ड्रामास पढ़ने चाहिए। लंबी लिस्ट है, नॉवल की लिस्ट अभी नहीं डाली है, जो मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा। तो ये हेल्प आपकी वहां से हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ग्रेजुएशन का सिलेबस। अच्छा, अब ग्रेजुएशन से आप दो ग्रेजुएशन होती है, एक होता है पास कोर्स, अनदर वन इज ऑनर्स। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑनर्स का जो सिलेबस है उसे भी आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी के ऑनर्स में क्या बुक्स हैं। मेरा शायद नेट क्लियर बार बार करने का कारण रहा है, मैं इंस्टीट्यूट में व्हेन आई स्टार्टेड इट, मैं ग्रामर भी पढ़ाता था, मैं स्पोकन भी पढ़ाता था। मैं ऑनर्स के स्टूडेंट्स आ गए तो मैंने ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंग्लिश लिटरेचर। मैंने पास कोर्स के स्टूडेंट को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे मैंने देखा कि जैसे जैसे स्टूडेंट आ रहे मैं पढ़ाता गया, और मैंने देखा कि मेरी नॉलेज तो बढ़ गई। तो ये एक तरीका है। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कुमकुम है अभी हमसे जुड़ी हुई है, शी इज एन ऑनर्स स्टूडेंट, आई थिंक शी वाज एन ऑनर्स स्टूडेंट, सुप्रिया वाज एन ऑनर्स स्टूडेंट। बहुत सारे ऑनर्स के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो ऑनर्स करते थे। तो ऑनर्स में आपको पता है थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा होता है, तो ऑनर्स का सिलेबस भी आप एक बार पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है। आजकल इंटरनेट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ यू मैं देख रहा हूं कि इंटरनेट का जो मटेरियल है ना वो बहुत अच्छा नहीं होता है कई बार। जैसे कल मैं एक पीडीएफ बना रहा था, कई बच्चों को आज पीडीएफ मिल गई होगी बाइबल का ट्रांसलेशन को लेकर के। मैंने फेसबुक पे तो केवल 4 पेज ही डाले हैं, बट आई थिंक उसके मोर देन 50 पेजेस का पूरा कंपाइल किया है। और मैं देख रहा था जब वो कल मैं मतलब बुक लिख रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि एग्जैक्टली वो चीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही जो मुझे जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या जो मुझे स्टडी में डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ऑनर्स का और बीए पास कोर्स का सिलेबस आप जरूर करेंगे, आप प्रॉमिस करें कि आप ये काम करेंगे आज, क्योंकि केवल लेक्चर अटेंड करने से कभी सफलता नहीं मिलती है। यू हैव अल्टीमेटली टू फॉलो द टीचर। तो आप सबसे अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन का अपनी यूनिवर्सिटी का और अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस एटलीस्ट और ऑनर्स का रिवाइज करें। रिवाइज करने का मतलब है बिल्कुल उन ड्रामास को। फॉर एग्जाम्पल डॉल्स हाउस सबने पढ़ा है, डॉल्स हाउस मोस्टली सिलेबस में होता है। अब जब हम डॉल्स हाउस को पढ़ते हैं तो मैंने देखा कि अभी लास्ट टू लास्ट एग्जाम में देयर केम अ होल एक्सट्रैक्ट।
अब उस एक्सट्रैक्ट के अंदर वो जो डायलॉग है उसको पढ़ करके आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे बताइए कि अगर आपने ओरिजिनल ड्रामा नहीं पढ़ा है तो वहां पे लगेगा। मुझे तो वो 1 सेकंड में समझ में आ गया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं इतना महान हूं, मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर रीडिंग होगी बैकग्राउंड में तो बहुत जल्दी जल्दी सीक्रेट ही बता रहा हूं नजीर साहब, सीक्रेट ही डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने कैसे किया, या कि मैं एक तो मैं अपने आप को कमजोर समझता हूं इंग्लिश में, पहले बताऊं। सभी स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान से सुने, अपने आप को 30 मार्क का ना समझे। आपने कभी किसी वीडियो में मुझे ये कहते नहीं सुना होगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, क्योंकि मेरी घिघी बन जाती है, आई फील वेरी लो। मुझे लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे एग्जाम में। इसका मतलब है कि आप एग्जाम तो दुश्मन है ना, एग्जाम तो एक एनिमी है, एनिमी को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और बार अपीयर इसीलिए होता हूं कि इस बार क्या आया ऐसा जो मुझे नहीं आता है। और मैं सच बता रहा हूं, हर एग्जाम में ऐसा लगता है जैसे मैंने मतलब अपने आप को एक एंथुजियाज्म से भरने का, जैसे जैसे कि मटेरियल मिल गया हो कि अरे अभी तो मुझे ये सारी चीजें पढ़नी है। आकर के एग्जाम के बाद तुरंत की बनाता हूं। मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता हूं, मैं की बनाकर बच्चों को दे देता हूं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बिकॉज अब आई हैव जंप्ड इनटू द बैंड वैगन, तो मैं अब वीडियोस बनाने लगूंगा। मैं आपसे रेगुलर कांटेक्ट में रहूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। आई वांट टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। चलिए, तो अब टॉपिक पर आते हैं। बताइए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि आप एक सिलेबस को डाउनलोड करें। अब उसके बाद मैंने लिखा है कि आपको 3 सिलेबस आज ही डाउनलोड करके और स्टडी शुरू करनी है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तीनों के सिलेबस आपके पास डाउनलोडेड होने चाहिए। और केवल डाउनलोडेड नहीं होने चाहिए, हमारा फोन डाउनलोडेड चीजों से भरा होता है। आप सारा दिन फेसबुक पे मुझे नजर ना आए और क्या करें, आप एक लिस्ट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने नोटिस किया है कि हर नेट एग्जाम में इग्नू के जैसे एग्जाम्पल है, मैं कई बार देखता हूं कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, तो पता चलता है कि मैंने ये जो टॉपिक है ये कहीं इग्नू के बुक्स में पढ़ा है। अब मेरे पास इग्नू की ट्यूशंस भी आती हैं, तो मैं इग्नू के बच्चों को भी पढ़ाता हूं। तो मैंने देखा कि अरे ये वाला पॉइंट, मैं उनसे बुक्स ले लेता हूं और उनको एक बार रीड कर लेता हूं। तो मैंने देखा कि अरे प्राइड एंड प्रेजुडिस में ये वाला पॉइंट जो है ये मैंने वहां पढ़ा था। या कि इतनी सारी डेफिनेशंस जो रोमांटिसिज्म की है, ये वाला क्वेश्चन किसी और नजर नहीं आया, ये क्वेश्चन केवल वहां नजर आया था। तो इससे पता चलता है कि अगर आप जेएनयू, अब जेएनयू का मैं कई ऐसे स्टूडेंट्स पीजी के पढ़ा चुका हूं जो जेएनयू से हैं, तो मैंने जब वो सिलेबस देखा तो आई रियली फाउंड लाइक इट इज क्वाइट नॉलेज। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑनर्स के सिलेबस के, जो मेरे पास एक लड़की एयर होस्टेस थी और वो डिस्टेंस कोर्स कर रही थी, तो शी केम टू मी। मैंने उसका जब कोर्स देखा, मैं बता रहा हूं कैसे कैसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। हो सकता है पहली बार में एग्जाम क्लियर हो जाए, इस लालच से आप पढ़िए। तो आपने देखा होगा कि चार्ल्स डिकेंस के बारे में या टेनिसन के बारे में, लखनऊ को लेकर के जो पोएम है सीज ऑफ लखनऊ, सीज ऑफ लखनऊ पोएम जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑनर्स के सिलेबस में है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा उस पोएम को ऑलरेडी जानता है, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे को कभी जिंदगी में पता नहीं चलेगा कि ये पोएम कहां से आई है, ये पोएम किसने लिखी है। इसका क्या, एटलीस्ट सेंट्रल बनाइए अपने आप को। सेंट्रल बनाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस आज डाउनलोड कीजिए, बीए का, पास कोर्स का, ऑनर्स का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। और इन तीनों यूनिवर्सिटीज के आप इग्नू के भी ऑनर्स के और पास कोर्स के कोर्स को डाउनलोड करके आप देख सकते हो कौन कौन से राइटर्स हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली एक बार उन सिलेबस को देखना है, कौन सी पोएम है, कौन सा पोएट है। अगर टेनिसन है जैसे मान लीजिए, तो अब टेनिसन की लोटस ईटर्स जो पोएम है वो कई सिलेबस में होती है, किसी सिलेबस में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए टेनिसन की एक पोएम है ना, जैसे मैं नाम भूल रहा हूं उसका, फ्लावर इन द क्रैनी। अब किसी सिलेबस में वो छोटी सी पोएम रखी गई है, किसी में नहीं रखी गई है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई हम, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, मैं ये जो सिलेबस डाउनलोड करने का टेक्निक बता रहा हूं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। व्हाट इज द रीजन? रीजन ये है कि हमें याद रहने लगेगा कि अच्छा ये पोएम मैंने उस सिलेबस में देखी थी।
आप में से कई लोग, क्योंकि आप मेच्योर हैं, आप मुझे कई कई स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी सोचेंगे कि ये काम तो हम ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे क्यों बता रहे हैं। उसका कारण बताता हूं। आपने टेनिसन की लिस्ट बनाई और टेनिसन की पोएम्स की सारी लिस्ट बना ली, लेकिन पोएम तो नहीं पढ़ पाओगे ना आप, और आपके माइंड में भी नहीं जाएगी, क्योंकि माइंड का मेमोरी में जाने का एक ट्रिक होता है, एक देयर इज अ मैकेनिज्म, व्हेन थिंग्स स्ट्राइक अस एंड दे गो इन आवर माइंड। वो होता है एक बेसिक है, उसको कहते हैं इंसिडेंट बनाना। इंसिडेंट कैसे? जैसे मान लीजिए आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया, तो वो एक इंसिडेंट बन गया। मान लीजिए क्लास में कई सारे बच्चे बैठे हैं और एक टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और उस बच्चे की उस दिन किसी वजह से इंसल्ट हो गई क्लास में, या उसको डांट दिया, तो आपको पता है कि उस बच्चे की लाइफ में वो इंसिडेंट बन गया। इंसिडेंट बनने से वो टॉपिक उसको याद रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नजर आते हैं जो किसी स्टूडेंट, एग्जाम्पल है मेरे पास, एक बार की बात है, मैं मेटाफर पढ़ा रहा था। तो व्हेन आई वाज टीचिंग मेटाफर, तो आई वाज, क्योंकि मैं हमेशा डिटेल में जाता हूं, तो मैं आई रिचर्ड्स की जो थ्योरी थी जिसमें टेनर और व्हीकल का कॉन्सेप्ट आता है, वो डिटेल में पढ़ा रहा था। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर इतनी डिटेल में मत जाओ आप। मैंने कहा कि, तो मैंने वो टॉपिक वहां रोक दिया। लेकिन इत्तेफाक की बात है, पिछले से पिछले नेट की बात है, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। ऐसे ही मेरे क्लासरूम के अंदर मैंने सभी दीवारों के ऊपर एंट्रेंस को छोड़ करके बहुत सारे टॉपिक्स के राइटर्स, उनके कॉन्सेप्ट्स की बड़ी बड़ी फोटोज लगा रखी हैं। तो फ्रीटेक्स पिरामिड का एक फोटो हमारी क्लास में लगा हुआ है, सिमियोटिक्स का एक फोटो लगा हुआ है, सिगमंड फ्राइड के जो आइसबर्ग की थ्योरी है, उसका आइसबर्ग थ्योरी मतलब कि भाई कितना परसेंट सबकॉन्शियस माइंड होता है, कितना, वो एक आइसबर्ग का डायग्राम है। तो वो ये पिक्चर्स में समझा रहा था किसी क्लास में। तो कुछ स्टूडेंट्स को बुरा लगा कि यार इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो, लेकिन यू विल बी सरप्राइज, फ्रीटेक्स का क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन आ गया। और वो एमए प्रीवियस की लड़की ने मुझे कहा कि सर हाँ, वो फोटो आपकी क्लास में थी ना, उससे मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इंसिडेंट बनाइए आप। बहुत आपने कई बार नोटिस किया होगा, देयर आर हार्ड कोर लेबोरियस स्टूडेंट्स, पर वो अपना नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हाँ, पूर्ति भट्ट पूर्ति थी जिसने ये क्वेश्चन मुझे बताया था। तो आप देखिए, मैं कई बार जब एग्जाम देने जाता हूं, मुझे वो बच्चे दिख रहे हैं, बराबर लगातार आ रहे हैं, नेट क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल तरीके से शायद तैयारी कर रहे हैं, वो इंसिडेंट नहीं बना रहे हैं, है ना। क्यों सुप्रिया, आपने वो लिटरेरी वॉल देखी है? यू आर वेरी मच द पार्ट ऑफ द क्लास। आपने देखा है, उसमें बहुत सारे मेरे ख्याल से मोर देन 100 पिक्चर्स आर देयर इन माय क्लासरूम। चलिए, तो मैंने जो आपको टॉपिक बताया वो आपको समझ में आया होगा कि इंसिडेंट बनाने के लिए क्या करें आप। एक्स्ट्रा चीजों में जा सकते हैं। एक मैं यहाँ पे पहले मना कर दूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया मैंने एमसीक्यूज सॉल्व करते हुए देखा है, एंड दे आर वेरी क्रेजी टू सॉल्व एमसीक्यूज। देखिए, मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। आप एमसीक्यू आपको याद नहीं रहेगा। एमसीक्यू तब सॉल्व करना चाहिए जब टॉपिक पढ़ लिया जाए। तो जब आप बात सर्च करें उनके क्वेश्चंस को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे अभी अभी फेसबुक पे एक मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ रखा था, द इन्वेंशन ऑफ लव किसने लिखा। तो मैंने देखा, अरे ये तो स्टॉपर्ड का ड्रामा है। मैंने तुरंत आंसर लिखा। फिर मैंने देखा कि उसके बारे में डिटेल भी मैंने थोड़ी सी लिख दी, तो पता चला कि जो फ्रेंड है उनको वो डिटेल मालूम नहीं है। फिर उन्होंने पूछा क्या करें, तो मैंने कहा इसको गूगल करो। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इसका मतलब क्या है कि इन्वेंशन ऑफ लव टॉम स्टॉपर्ड का लिखा हुआ ड्रामा है। ए.ई. हाउसमैन जो एक हमारे बहुत बड़े राइटर हुए हैं, पोएट हुए हैं, जिन्होंने द शॉपशायर लैड नाम की पोएम लिखी है, जिसमें उन्होंने होमो इरोटिक लव के बारे में लिखा है। तो अब एक ये डिटेल हो गई मेरे पास। इसका मतलब है कि जब मैंने कुछ बेसिक पढ़ लिया, आई हैव रेड सम बेसिक, और उसके बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर धीरे 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 मेरे माइंड में चीजों को की परमानेंसी बढ़ती है। ओके, उसके बाद आइए आपके, जब भी आप अपना सिलेबस देखते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी का और पोस्ट ग्रेजुएशन का, जब आप सिलेबस देखते हैं तो उसमें एक सजेस्टेड रीडिंग होती है। मैं हर नेट में एक क्वेश्चन दिखा दूं जिसमें वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको लगता है कि बुक कहां से, किसने लिखी है ये किताब, ये क्वेश्चन हमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका आंसर दे रखा होता है सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर। Suggested readings mean to say that when you open a book, open your syllabus, there is a syllabus, okay, but later on you find at the end there is written suggested readings. तो जब आप suggested readings पढ़ते हैं तो उसमें उन बुक्स के रेफरेंसेस आते हैं, उनमें से वो एक क्वेश्चन हमें पूछ लेते हैं एग्जाम में। इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे सजेस्टेड रीडिंग्स का आइडिया नहीं है। सजेस्टेड रीडिंग का क्या है कि एलिजाबेथन एज के लिए, शेक्सपियर के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक्स प्रोफेसर्स पढ़ करके क्लास में घुसते हैं,
कौन सी ऐसी बुक है, विल्सन की बुक को पढ़ के घुसते हैं कि कौन कौन से ऐसे ड्रामेटिस्ट, ऐसे ऐसे क्रिटिक्स हैं जिन्होंने इन राइटर्स के ऊपर अपना क्रिटिसिज्म लिखा है। हैमलेट पे किस किसने लिखा है, ओथेलो पे किस किसने लिखा है, ओथेलो के ऊपर कॉलरिज का जो क्रिटिसिज्म है, क्योंकि अगर कोई यूनिवर्सिटी ओथेलो सिलेबस में डाल रही है तो सजेस्टेड रीडिंग में वो ओथेलो से रिलेटेड क्रिटिसिज्म की बुक जरूर मेंशन करेगी। अब एक स्टूडेंट ने अगर ये तैयारी नहीं की है, इतनी सी तैयारी करो, आपका जीआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। I have qualified net in this CAT and now preparing for general line. That's great. That's it. जनरल कैटेगरी में भी आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए, सजेस्टेड रीडिंग्स की बुक्स के नाम लिखिए और उसकी लिस्ट बना लीजिए। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब आ जाइए, लिटरेरी एजेस की नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितने भी स्टूडेंट मुझे अभी देख रहे हैं, क्या उनके सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में लिटरेरी एजेस टिप्स पर हैं? लिटरेरी एजेस को टिप्स पर लाने का मतलब क्या है कि भाई मिडिल एजेस क्या होती है, एंग्लो सेक्सन एज क्या है, एंग्लो सेक्सन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंग्लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सन, ये वर्ड कहां से आए, रोमन लोग ने क्यों अटैक किया, फिर उसके बाद में क्या, सर आई हैव गिवन मैनी अटेम्प्ट्स बट नॉट एबल टू क्वालिफाई व्हेन आई एम वर्किंग हार्ड। नहीं दीक्षा अवस्थी जी, आप ऐसा करें, मुझे ज्वाइन करें मेरी ऑनलाइन क्लासेस, मैं आपको कंसेशन भी दे दूंगा, डोंट वरी, कांटेक्ट करें मुझसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं। मेरे पास जितने भी बड़े बड़े जो दिग्गज लाइव क्लासेस चलाते हैं ना ऑनलाइन, उनसे हारे हुए आते हैं तो पहली बार ही अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले का जो एफर्ट है वो जीरो हो जाता है, बट हाँ कुछ ट्रिक्स हैं और भी इनके अलावा जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। डोंट लूज योर हार्ट, डोंट गेट डिसहार्टेंड। ठीक है, आखिर एक फर्क तो पड़ता ही है जब आप ज्यादा एग्जाम क्लियर करते हो, ज्यादा पढ़ते हो। और मैं सेमिनार्स में भी बहुत जाता हूं, तो जो मुझे थोड़ा अपडेशन भी रहता है, हमेशा पूछे जा सकते हैं वगैरह वगैरह। लिटरेरी एजेस की नॉलेज पे बात करता हूं। लिटरेरी एजेस की लिस्ट की बात करें तो क्या एक स्टूडेंट को यह मालूम है कि चौसर की एज में क्या सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक घटनाएं घटी जिसकी वजह से को पता है कि कैंटरबरी क्यों फेमस है? कितने स्टूडेंट्स को पता है कि व्हाट वाज द टसल बिटवीन थॉमस बैके एंड द किंग, है ना? क्या कारण है कि गरीब लोग कैंटरबरी टेल्स में जाते हैं? कैंटरबरी जो थॉमस बैके हैं वो कौन सी चीज के पेट्रन सेंट हैं? अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लिटरेरी एजेस का मतलब ऐसे नहीं है कि इंटरनेट पे गए और 4 पॉइंट्स उतार लिए, उसकी डिटेल पता होना चाहिए। जैसे थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं आपको। जैसे आप अगर कैंटरबरी के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने पर आपको पता चलेगा, इट वाज हाईली डेकोरेटेड चर्च, और उसके अंदर यस यू कैन क्वालिफाई माई ग्रेजुएशन एंड पीजी डिस्टेंस एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स कैन इजीली क्वालिफाई नेट। विजय मलिक जी, मेरे से कांटेक्ट में आइए, आपका पहले अटेम्प्ट में हम क्लियर करवा देंगे। चलिए, तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो आपने देखा होगा कि लोअर कैटेगरी के या लोअर स्ट्रेटम के जो सिटीजन्स होते थे वो लोग यात्रा करने जाते थे, पिलग्रिमेजेस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या मांगने जाते होंगे, वो क्या देखने जाते होंगे, रास्ते के अंदर कहां कहां पे सराय होती थी। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर कैंटरबरी की जो श्राइन है थॉमस बैके की और जो टैबर्ड इन है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? अब ये मतलब फिर वो ऑप्शन दे देंगे 50 माइल्स का, 550 माइल्स का, 500 माइल्स का, 1000 माइल्स का। बट हम जब इस टॉपिक को पढ़ते तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि वो मतलब दे कैन आस्क यू अबाउट माइल्स ऑल्सो, है ना? तो इससे पता चलता है कि या कि जैसे वाइफ ऑफ बाथ जो कहानी कह रही है, तो वाइफ ऑफ बाथ की जो कहानी है अबाउट किंग आर्थर, तो किंग आर्थर की क्या डिटेल है? लिटरेरी एजेस की बात करते हैं तो एटलीस्ट एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं उस वर्क के अंदर, वो कैरेक्टर्स, ये सोचने का एक तरीका है बच्चों, ये इट्स अ मेथड, ये एक साइकोलॉजी होती है जो अलग अलग टीचर्स के पास जाने पर आप अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। एक टीचर आपको रटवाएगा, एक टीचर आपको सोचना सिखा देगा, एक टीचर आपको डेप्थ में जाना सिखा देगा, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे आया है। ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, थैंक यू सर, जुड़े रहे हमसे। मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट्स, ताकि आई हैव प्लान्ड कि मैं लाइव तो आपसे ऐसे जुड़ूंगा और डेली किसी अच्छे से टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि कोरोना लॉकडाउन पीरियड में आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए
और आप मुझे जान सको, आप मुझे थोड़ा सा स्प्रेड कर सको लोगों में, ताकि उन तक ये बेनिफिट पहुंच सके। अच्छा, टॉपिक पर आते हैं। तो लगता है मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि हमें क्या नहीं आता ये हमें पता होना चाहिए। ये आपको एक टीचर बता सकता है कि आपने ये पढ़ा क्या। आप स्किप कर जाओगे, क्योंकि जितनी भी मार्केट की बुक्स होती हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑन द सरफेस लेवल। क्वेश्चन आ जाता है, बट जब वो इन डेप्थ का क्वेश्चन पूछते हैं, जब वो वर्च्यूज का क्वेश्चन पूछते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको क्रिश्चियन वाइसेस एंड वर्च्यूज का डिटेल नॉलेज है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो फेरी क्वीन के का जो डेडिकेशन का लेटर है उसको डिटेल में पढ़ा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेज का है। मेरी क्लास में जैसे ही मैं कैंटर स्पेंसर का ये फेरी क्वीन पढ़ाने लगता हूं, उससे पहले मैं वो बताता हूं, उसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए, उसमें जो डार्क कंसीट का क्वेश्चन है, दैट हैज कम फ्रॉम दैट, दोबारा सुनिए, फेरी क्वीन एक डार्क कंसीट है। अब डार्क कंसीट का कॉन्सेप्ट कहां आया है कि सर वॉल्टर रिले को जो डेडिकेटरी लेटर लिखा, उस लेटर को ओरिजिनल पढ़ना पड़ता है कि वो किंग आर्थर की वर्च्यूज की बात कर रहा है। उसने 12 जो नाइट्स लिए हैं वो क्यों लिए? बिकॉज ही वॉज 12 वर्च्यूज प्रोपाउंडेड बाय एरिस्टोटल। अब ये मेरे नॉलेज में कहां से आया? क्योंकि आप वो डेडिकेटरी लेटर उठा के पढ़ लीजिए, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी मिडाइवल इंग्लिश है, तो वो एक बार में समझ में नहीं आती है। बट व्हेन यू गेट कनेक्टेड विद द टीचर लाइक मी, तो मैं आपको ओरिजिनल पढ़ाता हूं। मैं बिल्कुल पढ़ा देता हूं, मैं ऑनलाइन भी ओरिजिनल पढ़ा देता हूं। अभी मैंने 1 महीने पहले बड़ी बड़ी पोएम्स वर्ड्सवर्थ की, आप जाके मेरे इन्हीं चैनल्स पे ढूंढिए, आपको वो लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे 1-1 1.5 घंटे के। तो एक तो मुझे आई एम नॉट अ लेजी टीचर कि मैं कामचोर नहीं हूं कि भाई मैं ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, ये तो कम पढ़ो, ये ज्यादा पढ़ो। जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, पढ़ते ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर सॉल्व करने के साथ साथ, सिलेबस डाउनलोड करने के साथ साथ, अपनी कमजोरी को समझने के साथ साथ, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करने के साथ साथ, ये सब चीजें साथ साथ होंगी। इसके अलावा अभी मैंने पिछले एक वीडियो में अपने यूट्यूब पे जो डाला था मार्क्सिज्म का, I was talking about, because it's a very, very pious and sacred duty of a teacher to motivate his or her students. देखिए, मोटिवेट 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो मेरा बिहेवियर मोटिवेट करेगा, मेरे पीछे जो लाइब्रेरी है वो मोटिवेट कर सकती है। लेकिन ये मोटिवेशन भी 2 तरह का होता है। एक तो ये कि बुक्स खरीद के लाइब्रेरी बना लो, एक है कि जस्ट गेट कनेक्टेड विद मी। जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं सारे दिन ही जवाब नहीं दे पाता हूं। अब नवीन शेखावत ने हमारा टेलीग्राम वो चैनल स्टार्ट किया, बट मैं आंसर ही नहीं कर पाया, बिकॉज आई वॉज बिजी इन रीडिंग समथिंग। अगर आप रीडिंग ही नहीं करोगे बैठ के, अपना टाइम जरूर आप चेक करें कि आपके 7-8 घंटे गए क्या। हैव यू डिवोटेड 7-8 आवर्स इन कंस्ट्रक्टिव रीडिंग बाय मेकिंग नोट साइड बाय साइड? ये आपकी गलत फहमी है। मैं एक बार कोई एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने अपने डैड से बात की, तो माय डैड टोल्ड मी कि आप एक बात देखिए, अपने मन में झांकिए कि कौन सा एरिया वीक है। तो हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग कई बार इंट्रोवर्ट नहीं होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा कौन सा एरिया वीक है। हम पता नहीं क्यों ऑल द टाइम वी रिक्वायर सम हेल्प आउटसाइड अस। देखिए, एनर्जी और कैपेबिलिटी तो सारी हमारे अंदर ऑटोमेटिकली है। टीचर तो इज जस्ट लाइक पाथ शोइंग अ पर्सन, लाइक जो बताएगा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हेल्प कर देगा। कुछ टीचर मेरे जैसे हाथ भी पकड़ करके ले जाते हैं मंजिल तक, तो वो अलग चीज है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा फिजिकली या ऑनलाइन, कि आप मेरे से जुड़े, तब जाकर के मैं आपको उस चीज की तरफ ले जाऊंगा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि लिटरेरी एजिस का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जैसे कितने बच्चे हैं क्लास में इस वक्त जो मेरे से जुड़े हुए हैं जिन्होंने वर्जिल का एनीड पढ़ा है? अगर आपने एनीड नहीं पढ़ा है, आपने होमवर्क का, अरे पढ़ने का मतलब है कि एटलीस्ट स्टडी कर लो। अब आपको पता होना चाहिए कि एनीड जो वर्जिल की लिखी हुई बुक है वो अनफिनिश्ड बुक है। अब वो अगर ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और हम जवाब नहीं दे पाते, या कि हॉरेस, अभी मैंने 4 दिन पहले ही अपने जो दूसरा दे, आई हैव 2 चैनल्स, मैं ये बता दूं कई स्टूडेंट्स को, इंग्लिश कॉस्मोस लिटरेचर, जिसपे मैं केवल लिटरेरी चीजें डालता हूं। ये जो चैनल जिसपे मैं क्लास ले रहा हूं, ये मेरा एक फ्रेंडली चैनल है, जिसमें मैं अपने घर की फोटोज भी अपलोड कर देता हूं, कुछ अपने पॉलिटिकल कमेंट भी अपलोड कर देता हूं। बट दैट चैनल इंग्लिश कॉस्मोस लिटरेचर, दैट इज प्योरली मेंट फॉर स्टडीज। तो मैंने अभी उसमें कुछ नोट्स अपलोड किया। मैंने एक और बुक अभी इन दिनों लिखी है, वो अभी कंप्लीट होने वाली है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी मेजर कैरेक्टर्स of all the majors or imaginary characters which have been asked in the exam, or there is a possibility of their being asked in the exam, coming exam. तो आप लोग वेट करते रहिए,
और जो मुझसे जुड़ेंगे मैं उनको वो पीडीएफ दे दूंगा। यस, आप एमए फाइनल में यू कैन अप्लाई फॉर, कुलदीप जी यू कैन वेरी मच अप्लाई फॉर जून नेट। पर अभी 15 दिन की वो बढ़ गई है एमए फाइनल ईयर। बिल्कुल बिल्कुल, यू शुड अप्लाई। मेरे से आप जुड़े रहिए, और हो सकता है मेरे पास ऐसे कई एग्जाम्पल है जिसमें एमए फाइनल के स्टूडेंट फाइनल का एग्जाम नहीं देते हैं, उससे पहले नेट क्लियर कर लेते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में। ठीक है, वो अलग बात है कि मैं कोकून से बाहर अब आया हूं। आई वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड स्टूडेंट्स विद माई चिल्ड्रन। मैं जयपुर में ही था, बट लॉकडाउन इज काइंड ऑफ बून फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर मी ऑल्सो, कि मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। चलिए, तो मैं ये कहना चाह रहा था लिटरेरी एजेस की नॉलेज होनी चाहिए। और बात करता हूं आपसे लिटरेरी एजेस में मेटाफिजिकल की बात करते हैं 1 मिनट के लिए, कि जरा आप मेटाफिजिकल एज की बात कर रहे हैं, तो मेटाफिजिकल एज के अंदर कॉलोनियलिज्म का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, रेनेसा ह्यूमनिज्म का क्या कॉन्सेप्ट चल रहा था, पेट्रनशिप किसको दी जाती थी, कौन पेट्रन बना करता था। मेटाफिजिकल एज के अंदर ये मेटाफिजिकल जो वर्ड है, हम केवल इतनी तैयारी करके रह जाते हैं दैट हु यूज द वर्ड मेटाफिजिकल। सबसे पहले ड्राइडन ने यूज किया इन द वेरी नेगेटिव सेंस, उसके बाद डॉक्टर जॉनसन ने यूज किया, इतना सा पढ़ते हैं और खत्म कर देते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मैंने अभी डॉक्टर जॉनसन के थॉमस ग्रे के ऊपर जो पूरा उन्होंने ऐसे लिखा है अपलोड किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट स्टूडेंट्स डिड नॉट लाइक दैट। उसको लाइटली लिया, उनको मुश्किल से 100 व्यूज वर देयर। मैं समझ गया कि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इन डेप्थ। तो फिर एक बात सुन लीजिए, बहुत बहुत पते की बात है, जो कि एक बहुत बड़ा सत्य है। ट्रूथ इज डार्जलिंग थिंग। एमिली डिकिंसन ने लिखा है ना कि ट्रूथ आपको डैजल करता है, क्योंकि हम सच का सामना करते ही नहीं है। सच ये है कि जिस दिन द मोमेंट यू बिकम अ डीप रीडर, दैट सर्टिफिकेट विल बी इन योर हैंड। इफ यू डोंट रीड, इफ यू डोंट इंप्रूव योर सेल्फ, यू डोंट डिजर्व टू बिकम अ प्रोफेसर। इंग्लिश का प्रोफेसर बनने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि मैं स्पोकन के भी बैचेस चलाता हूं। आप तो जिसको स्पोकन नहीं आती है, स्पोकन इंप्रूव करो। एक क्वेश्चन आया था कि नेजलाइज्ड इंग्लिश, और 4 ऑप्शन दे दिए उन्होंने। तो जब नेजलाइज्ड इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो उसका आंसर तो वैसे अमेरिकन था। तो स्पोकन को लेकर कई क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग मेथड्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लिटरेरी एजेस के अंदर जब हमें ये पता होना चाहिए कि मेटाफिजिकल राइटर्स, कौन से राइटर्स को पढ़ करके, इट्स नॉट अबाउट कि कौन से राइटर्स को पढ़ करके उनको आगे, जैसे हम फ्ली पोएम पढ़ते हैं, जैसे हम एक्सटेसी पोएम पढ़ते हैं जॉन डन की, तो फ्रॉम वेयर दे वर टेकिंग द आइडियाज। तो आपने ओविड को आपको पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। मैंने काफी सारे अभी ओविड के ऊपर एक पीडीएफ बनाई थी, मैंने पहले बना रखी थी, उसको मैंने रिवाइज किया। तो आई स्टूडेंट्स दोज हु हैव जॉइंड मी, तो मैंने देखा कि उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो देन यू कम टू नो के ओविडियन फिलॉसफी से किस मेटाफिजिकल राइटर से वो इंस्पायर्ड थे, और वो जो भी फ्रेजेस लिख रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। और आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो दे हैव बीन आस्किंग अस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद है मेजर किंग्स की लिस्ट। जिन्होंने मुझे अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि मेरा YouTube चैनल है, उस पर मैंने एक वीडियो इसका डाल रखा है इन अ वेरी कन्वर्सेशन स्टाइल, कि इफ यू वॉच इट, खाना खाते खाते भी आप उसे वॉच करेंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी मेजर किंग्स एंड क्वींस की लिस्ट है वो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी, रीजेंसी पीरियड क्यों बोलते हैं उसको, शैली क्यों नाराज था जॉर्ज थर्ड से। आपको पता होना चाहिए कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के वक्त कौन गद्दी पर बैठा। आपको रेस्टोरेशन एज की डिटेल पता होनी चाहिए। आज करके अपने स्टूडेंट्स को दी है बाइबल के ट्रांसलेशन में, तो आई जस्ट स्टार्टेड दैट विद सर्टेन क्वेश्चंस, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से राजा ने बाइबल के ट्रांसलेशन को स्टार्ट किया। इसको मैं थोड़ा एग्जांपल देके बताता हूं कि हमें राजा की डिटेल क्यों पता होनी चाहिए, कि कौन विलियम द कॉन्करर है। विलियम द कॉन्करर कौन सा राजा इंपॉर्टेंट है, विलियम द कॉन्करर क्या पढ़ा लिखा था, क्या विलियम द कॉन्करर के बाद एग्जैक्टली एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज है वो खत्म हो गई और एंग्लो नॉर्मन स्टार्ट हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मन एंड एंग्लो सैक्सन इंग्लिश। तो ऐसे करके ये सारी चीजें समझने के लिए हमें राजाओं का दखल पता होना चाहिए। कौन जो था कम उम्र में गद्दी पर बैठा, कौन से राजा की रानी ने उसकी ज्यादा हेल्प की, ऐसे क्वेश्चन हमें पूछ रहे हैं। एक मैं हंसी मजाक में क्वेश्चन पूछ लेता हूं कई बार क्लास में कि क्वीन एलिजाबेथ के कितने बच्चे थे।
तो या शेक्सपियर पढ़ा, तो वो हंसी की बात इसलिए क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ वॉज अनमैरिड, तो बच्चे फिर वो क्लास में आंसर देते हैं, कोई कहता है 4 थे, कोई कहता है 3 थे। और कई कई लोगों को पता ही नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि हमें राजा रानी के बारे में डिटेल मालूम करने की का इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, सो दैट यू कैन को रिलेट द राइटर्स इन ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए आज की क्लास में। अब आते हैं कि रेनेसा की डिटेल अ स्टूडेंट शुड नो। रेनेसा के ऊपर आप कोई वीडियो देख लीजिए। रेनेसा के ऊपर यू शुड रीड। मैं भी एक पीडीएफ बना दी है ऑलरेडी, मैं जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ेंगे मैं उनको दे दूंगा, और कुछ पेजेस उसके मैं फेसबुक पे भी डाल दूंगा। रेनेसा और रिफॉर्मेशन की डिटेल नॉलेज हमें होनी चाहिए। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट वी शुड बी अवेयर अबाउट द मेजर पेंटिंग्स, द इंपॉर्टेंट डेट्स कि रेनेसा कैसे स्टार्ट हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल का क्या उसमें योगदान है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रूसेड, क्रूसेड कहाँ से स्टार्ट हुए, व्हाट इज द लिंक बिटवीन क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, why the translation of Bible started, why Bible the translation of Bible is termed as reformation। जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी बना रहा था, I was preparing MCQs for a particular PDF कि जब पायर्स द प्लॉमन लिखी गई तो उसके अंदर ही इज क्रिटिसाइजिंग, उसमें एक ऑप्शन मैंने डाला कि ही इज क्रिटिसाइजिंग प्रोटेस्टेंटिज्म, जबकि आपको मालूम है वो गलत आंसर है, क्योंकि प्रोटेस्टेंटिज्म तो तब तक आया ही नहीं था। वाइक्लिफ ने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसलेशन करना, बट वी कैन नॉट से दैट प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया था। दे वर स्टिल फाइटिंग, द ज्यूज एंड द क्रिश्चियंस वर फाइटिंग। तो जू बाइबल को क्या कहते हैं, हिब्रू बाइबल को क्या कहते हैं, तनख किसका नाम है, सेप्टुअजिंट किसका नाम है, पेंटाट्यूश किसको बोलते हैं, लैटिन बाइबल को वल्गेट क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। इसका मतलब है कि रिफॉर्मेशन की डिटेल नॉलेज, कौन सी बाइबल कब ट्रांसलेट हुई, जिनेवा बाइबल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है शेक्सपियर की लाइफ में, किंग जेम्स ने जिनेवा बाइबल को पसंद क्यों नहीं किया, बताओ किसी के पास आंसर है तो, कि व्हाट इज द रोल ऑफ जिनेवा बाइबल इन फॉर्मिंग प्यूरिटनिज्म, और जिनेवा बाइबल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है कॉलोनियलिज्म में। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जिनेवा बाइबल को ही मे फ्लावर जो शिप था उसमें लेकर के और अमेरिका गए थे, ये जो पिलग्रिम्स गए थे सबसे पहले, इनको पिलग्रिम्स कहा जाता है, तो जो लोग अमेरिका को एस्टैब्लिश करने के लिए गए थे। तो ऐसे करके रिफॉर्मेशन की डिटेल नॉलेज हमें होनी चाहिए। डिटेल नॉलेज का मतलब क्या है, you can directly get in contact with me, I will supply you with the right material, ताकि आपको इधर उधर छटपटाना नहीं पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट जैसे कई बच्चों को ये पता नहीं होता है कि व्हाट इज प्यूरिटनिज्म, व्हाट इज प्रेस्बाइटेरियनिज्म, व्हाट इज मेथडिज्म, व्हाट इज क्वेकरिज्म, व्हाट वाज द टसल बिटवीन द प्रेस्बाइटेरियन पीपल एंड द क्वेकर, व्हाट इज इवेंजेलिकल चर्च, ये सब रिफॉर्मेशन से निकल के आते हैं। कि मैं थोड़ा आंसर भी दे देता हूं ताकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बन जाए आपके लिए। कि देखो जब इंग्लिश कल्चर में आपको पता है स्विट्जरलैंड में जो बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ वो ज्विंगली ने किया, वो प्रोटेस्टेंटिज्म का एक अलग ब्रांच बन गया। फ्रांस के अंदर आपको पता है कि कैल्विन ने इसको ट्रांसलेट किया। तो कैल्विन ने जब ट्रांसलेट किया तो उन्होंने प्रीडेस्टिनेशन की एक थ्योरी का अलग तरह से ट्रांसलेशन किया। क्योंकि देखो जब हम लोग बाइबल के ट्रांसलेशन की थ्योरी पढ़ते हैं, अब जब ये नहीं पढ़ेंगे तो हमें राइटर्स का समझ में नहीं आएगा, हमें राइटर का केवल वर्क समझ में आएगा, और वो जो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर हमारे पास, वी डोंट हैव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। जैसे क्या इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन के जैसे कि प्यूरिटन्स के बेसिक रूल्स क्या हैं। तो आपको मालूम है कि प्यूरिटन्स आर अगेंस्ट द किंग्स। तो वो किंग्स के अगेंस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि प्रीडेस्टिनेशन का जो थ्योरी कैल्विन ने दिया ट्रांसलेशन में, क्योंकि हिब्रू से ग्रीक में ट्रांसलेट हुई, ग्रीक से लैटिन में ट्रांसलेट हुई, लैटिन से फिर वो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, अलग अलग लैंग्वेजेस में जब ट्रांसलेट हुई, आर्मीनियन, अरबिक लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। और जब ट्रांसलेशन होता है तो ट्रांसलेशन थ्योरी होती है जब हम लोग पढ़ते हैं, एंड द मीनिंग चेंजेस। कई बार क्या होता है, मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। उसका भी एक एग्जाम्पल है फिग लीफ का, जो जैसे जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रेट बाइबल जिसको अपन बोलते हैं उसको ब्रीचेस बाइबल भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या किया राइटर ने, ये ट्रांसलेट कर दिया जल्दबाजी में कि फिग लीव्स एडम और इव को जब फल खाने के बाद दैट फॉरबिडन ट्री का जो एप्पल उन्होंने खाया, तो उसके बाद उनको कि भाई बिकॉज दे केम टू नो अबाउट देयर न्यूडनेस,
तो उन्होंने, एक बाइबल कहती है कि फिग, जो वो एप्पल का ट्री है, लेकिन उन्होंने फिग का पत्ता तोड़ करके और अपने जेनिटल्स को ढक लिया। लेकिन एक राइटर लिख रहा है ट्रांसलेशन में, उसको ब्रीचेस बाइबल बोलते हैं, आप गूगल करके देख लेना, कि क्योंकि उसमें दिखाया कि उन्होंने ब्रीचेस मतलब वो जो नीचे से पजामा, चूड़ीदार पजामा और ऊपर से डीली पैंट होती है ना, उसको ब्रीचेस बोलते हैं, कि उन्होंने ब्रीचेस पहन ली, तो उसका नाम पड़ गया, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर बाइबल देयर कम्स द रेफरेंसेस ऑफ द ब्रीचेस। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी इन डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है, और ये कैसे होगी, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी टॉपिक का आपको सही और करेक्ट मटेरियल आपको मिलना चाहिए। जब वो करेक्ट मटेरियल आपके हाथ में होगा तो आपको ऑब्वियसली कोई नहीं रोक सकता, आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं। तो रिफॉर्मेशन और रेनेसा की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। मैं रेनेसा पे और बात करता हूं। रेनेसा की वजह से ही कई सारी बुक्स ट्रांसलेट हुई, तो वो जो बुक्स ट्रांसलेट हुई उन पे क्वेश्चन आते, तो उनसे रिलेटेड हमें आइडियाज होने चाहिए। यहाँ मैं इग्नू का क्लास करवाता हूँ, नमिता पंडित जी, यू कैन ज्वाइन मी फॉर दैट। उसके लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, और मेरा यूट्यूब चैनल सभी सब्सक्राइब कर लें, उसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर फॉर यूजीसी नेट बाय मुकेश पारिक। अच्छा, फिर आता है लिटरेरी मूवमेंट्स। लिटरेरी मूवमेंट्स का क्या मतलब होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि भाई मेटाफिजिकल पोइट्री है ना, उसके बाद आपको न्यू क्लासिकल एज पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि न्यू क्लासिकल एज को ऑगस्टन एज क्यों बोलते हैं, आपको रेस्टोरेशन एज का पता होना चाहिए, रेस्टोरेशन एज के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल घटनाएं घटी, वो अलग से आपको लिस्ट बनाने का जिनका मन नहीं है वो मेरे को कांटेक्ट करें, मैं उनको स्टडी मटेरियल दूंगा, ठीक है। तो लिटरेरी मूवमेंट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। लिटरेरी मूवमेंट में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट के साहब, जैसे रहने इसकी बात कर लेते हैं, रोमांटिसिज्म की बात कर लेते हैं, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि मैथोडिज्म का क्या रोल है रोमांटिसिज्म के अंदर। तो लिटरेरी मूवमेंट के अंदर मैथोडिज्म भी आ जाता है। मैथोडिज्म क्या था, वेज़ले ब्रदर्स ने बाइबल को बहुत इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया फॉर द वर्किंग क्लास, कि जो लोग मजदूर, नॉट वर्किंग क्लास, मजदूर जो खेत में काम कर रहा है वो संडे को फ्री नहीं हो सकता, तो उस तक मैं कैसे बाइबल लेके जाऊं, और उसकी लैंग्वेज भी इजी होनी चाहिए। तो किस तरह से लैंग्वेज को इजी करना, क्योंकि आपको पता है पोएटिक डिक्शन की थ्योरी खत्म होती है न्यू क्लासिकल एज के बाद में जो रोमांटिसिज्म आता है। तो इसका मतलब है कि लिटरेरी मूवमेंट्स का डिटेल पता होना चाहिए। जर्मनी में लिटरेरी मूवमेंट जो रोमांटिसिज्म, उसको क्या बोलते हैं, फ्रांस में लिटरेरी मूवमेंट जो है वो क्या था रोमांटिसिज्म का, अमेरिका में इसको क्या बोला गया, अमेरिका के अंदर इसको ट्रांसेंडेंटलिज्म बोलते हैं। वो थोड़ा लेट आया कि जब हमारे इंग्लैंड में विक्टोरियन एज चल रही है तो रोमांटिसिज्म चल रहा है अमेरिका के अंदर। तो देन रोमांटिसिज्म में रोमांटिक वर्ड कहां से आया, विद एन एज बोल देते हैं, तो कब एज बोलते हैं, कब इरा बोलते हैं, कब पीरियड बोलते हैं, है ना। ऐसे करके आपको लिटरेरी मूवमेंट्स का एक पता, मूवमेंट का बड़ा गहरा मतलब होता है। एक मूवमेंट आता है, इसका मतलब है देयर some upheavals are always there, whether it is in the social from the social point of view, or that upheaval is from political point of view, literary point of view से भी हो सकता है। कुछ ऐसा होता है अचानक से राइटिंग बदलती है, और जब मैं ऐसे बोलता हूं अचानक से राइटिंग बदलती है, तो आपको मालूम है कि अचानक कोई राइटिंग नहीं करता, कि कहीं से डिस्टर्ब होकर आया और उसने राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर बात चलती है, एक और एग्जांपल है मेरे पास लिटरेरी मूवमेंट में, कि हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट सनराइजिंग पोएम पढ़ी है? सनराइजिंग पोएम पढ़ी है आपने? जॉन डन की लिखी हुई पोएम है। अब सनराइजिंग पोएम के अंदर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट सन, वो हाइपरबली का यूज करता है, वो किंग्स जेम्स के ऊपर सटायर कर रहा है ना, वो रेनेसा का बहुत सारा मटेरियल यूज कर रहा है। पोएम को हम ओबेड बोलते हैं। ओबेड का मतलब होता है मॉर्निंग सॉन्ग, जो अच्छा वो जो जिससे वो बात कर रहा है, इट्स एन इंटीरियर मोनोलॉग है, तो जिसको हम ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंटरलोक्यूटर कैन बी अ पोएट ऑल्सो, लाइक जॉन डन भी हो सकता है कि कोई और एक कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है, वो उसकी बिलवड है कि वाइफ है, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको पता होना चाहिए कि रेनेसा जो एज थी उसमें द सोशल रेस्ट्रिक्शंस वर क्वाइट स्ट्रिक्ट, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि वो वाइफ ही होगी, वो बिलवड नहीं हो सकती। फिर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। द क्वेश्चन इज के when the writers say that the sun you come and the sun you go,
तो it means he's considering that the earth is stationary and the sun is moving. But today we know that sun is stationary and earth is moving. So there is a concept of geostationary and heliocentric and geocentric view. तो अब ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, तो अब जिस बच्चे को जियोसेंट्रिक और टॉलमिक थ्योरी ऑफ कॉस्मोस नहीं पता, या जिसको कॉपरनिकन थ्योरी ऑफ कॉस्मोस नहीं पता, तो इसका मतलब है कि उस स्टूडेंट ने अभी पोएम को डिटेल में ढंग से नहीं पढ़ा, उसने जॉन डन के ऊपर डिटेल टाइम नहीं दिया. ये दैट आई वांट टू कन्वे कि आप केवल एक पोएम पढ़ रहे हो तो यू शुड नो अबाउट all the impressions on the poet that gave him that poem. A poem is a kind of a rebirth. A poem is a kind of जिसको हम हिंदी में द्विजा बोलते हैं, that first it comes in the mind of the poet and then it comes on the page. तो क्या माइंड में आया, what were the social and political circumstances, what were the intellectual circumstances responsible for that writer to bring out that poem on the page. तो हेलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक का कॉन्सेप्ट से मैंने बताया कि एवरी लिटरेरी मूवमेंट में ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि वी सी दैट ऑलवेज we see that in Shakespearean dramas there comes in almost in every second there comes the reference of the cross dressing कि जो हीरो या हीरोइन लड़का बनती है मोस्टली. तो उसका क्या कारण है, what can be the reason? क्योंकि सोशल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स और कि लड़कियां स्टेज पर नहीं आती थी, और वो जो लड़के आते थे वो चर्च के कॉयर मेंबर्स होते थे, तो वो इजीली उनको अनकंफर्ट फील होता होगा. तो राइटर अपना जो प्लॉट लिखता था, एक तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि शेक्सपियर कभी भी अपने प्लॉट को या अपने ड्रामा को पूरा लिख करके परफॉर्म नहीं करवाते थे. आप डिटेल में पढ़िए, आपको पता चलेगा कि ही वॉज अ वेरी कमर्शियल पर्सन और इट वॉज अ कमर्शियल एक्टिविटी राइटिंग प्लेज. तो बड़े बड़े छोटे छोटे पेजेस पर डायलॉग्स लिख लिख करके अपने कैरेक्टर्स को दे दिया करते थे, तो ये डायलॉग बोलना, तो ये डायलॉग बोलना, और वो इंस्टेंटली चेंज भी कर देते थे उसको कई बार. दैट्स व्हाई वी कॉल हिम जीनियस. और वो जो ड्रामाज होते थे दे वर पॉलिटिकली मोटिवेटेड. पॉलिटिकली का मतलब यहाँ पे है कि वो इकोनॉमिकली. तो जैसे मान लीजिए कि भाई क्रॉस ड्रेसिंग क्यों होती थी, या जैसे हम बात करें कि जो प्री रोमांटिसिज्म है, तो प्री रोमांटिसिज्म जो मूवमेंट है उसको हम प्रीटर रोमांटिसिज्म भी बोलते हैं, हम उसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलते हैं. वी शुड गो इन डेप्थ एंड ट्राई टू नो दैट व्हाट हैपेंड इन द लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे. वो जो लिटरेरी ग्रे लिख तो रहे हैं अपनी एज के बारे में बट ही इज लेस रोमांटिक. एंड अगस्त में होगा, exam will be in August, so you have almost June, July, and in August का भी clear नहीं है because number of COVID patients are now increasing. अभी community spread होगा because the lockdown is only in the name only. तो let us see what मेरा मानना है कि हमें तैयारी करनी चाहिए. Okay, then let me talk about the other things. आज lecture काफी बड़ा हो गया है, so let us stop it here. What I was talking about, those who joined me last, कि तैयारी करने के लिए सबसे पहले पेपर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करके अपनी कमजोरी पता करें. वंस यू कम टू नो अबाउट योर वीकनेसेस, देन यू शुड गो एंड डाउनलोड द सिलेबस ऑफ ऑल द डिफरेंट मेजर यूनिवर्सिटीज, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, पर्टिकुलरली JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी. के बाद में आप क्या करें, उन सिलेबस के नीचे जो सजेस्टेड रीडिंग्स दे रखी होती है उनकी बुक्स की लिस्ट बनाएं, नॉलेज लें. लिटरेरी एजेस के लिए डायरेक्टली यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो. आई एम वेरी एक्टिव टीचर. मैं अलग से भी वीडियो बना के स्टूडेंट को देने में नहीं हिचकता हूं, मैं लाइव आ जाऊंगा. आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. लाइव क्लासेस का मतलब यही है दैट आई हैव कम आउट ऑफ माय कोकून सो दैट आई कैन हेल्प मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. आप साइलेंटली मत वॉच किया करें. आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछा करें, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. फिर आ गया उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनाएं, उसके सोशियो पॉलिटिकल जो कॉन्सेप्ट चल रहे थे उनकी लिस्ट बनाएं, मेजर किंग्स की लिस्ट बनाएं, मेजर क्वींस की लिस्ट बनाएं. कंटिन्यू करें. अच्छा, मैं कंटिन्यू करता हूं, मैं थक गया हूं थोड़ा सा. टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमने इस पेज पे दे रखा है, उसको आप
ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं उस पर कुछ पीडीएफ्स वगैरह देता रहूँगा। मैं हेल्प करने के मूड में हूँ। ऐसा मान लीजिए मेरे कुछ पाप होंगे जिनको मैं धोना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू हेल्प मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आप मुझे आशीर्वाद ज़रूर दें सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है मुझे आशीर्वाद की कमी है। और आशीर्वाद कब मिलता है? व्हेन यू रियली गेट बेनिफिटेड। बेनिफिट लेने के लिए क्या करें? रियल में जुड़ें। केवल फेसबुक पे जुड़ने से, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेने से हमारी रियल स्टडी स्टार्ट नहीं होती। हमारी रियल स्टडी कई बच्चों ने मुझे कहा है कि भाई फीस बहुत ज्यादा है, तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। जो आपकी पॉकेट फ्रेंडली होगा, मैं वो रहते हुए बिकॉज ऑफ कोविड आई विल गो आउट ऑफ वे, बिकॉज मैंने बता रखा है कि भगवान की दया से मैंने सब कुछ कर लिया लाइफ में। तो अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, आपको अगर मैं कुछ दे पाऊं, तो मुझे लगेगा कि मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने बात की लिटरेरी एजेस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनाए, मेजर किंग्स और क्वींस की लिस्ट बनाए, उनकी डिटेल आप हासिल करें। क्वीन विक्टोरिया के बारे में डिटेल में पढ़ें। क्वेश्चन आता है क्वीन विक्टोरिया की पर्सनालिटी क्या थी। जैसे एब्सलम एंड एक्टोफल पढ़ते हैं, ड्राइडन का लिखा हुआ, तो उसके अंदर वो आपको मालूम है जेम्स चार्ल्स सेकंड की पूरी बात करता है। तो चार्ल्स सेकंड की डिटेल का पता होना चाहिए, क्योंकि चार्ल्स सेकंड की पर्सनालिटी अल्टीमेटली समवेयर चेंज्ड द परसेप्शन ऑफ द ड्रामेटिस्ट इन दैट एज, है ना, जिसको हम लोग रेस्टोरेशन कॉमेडी बोलते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और मुझे अभी आप सजेस्ट करें कि आपको कल क्या पढ़ना है। मैं पढ़ाने के मूड में हूं, तो आप जो कहेंगे, जिसको जो टफ लगता है, मैं वो टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। तो आप अपनी बुक्स ले लीजिएगा हाथ में। आपके घर में 2 फोन है, तो एक फोन में टेक्स्ट ले लेना, एक फोन में मेरे को देखते रहना, और हम पढ़ लेंगे। आप सजेस्ट करना स्टार्ट करें। मैं अभी जा नहीं रहा हूं, आई एम वेरी मच लाइव। तो मैं उनके लिए रिकैप्चुलेट कर रहा हूं जिन्होंने लास्ट में ज्वाइन किया है, दैट रेनेसा की डिटेल हासिल करें। मुझे आस्क मी फॉर द पीडीएफ, आई विल गिव यू। रिफॉर्मेशन की डिटेल हासिल करें। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आपको एक भी वीडियो फालतू की बकवास करता हुआ नजर नहीं आएगा। एक एक वीडियो में बहुत would you provide unit wise PDFs after joining? yes, मैं यूनिट वाइज टॉपिक दूंगा आपको जब आप मुझे ज्वाइन कर लेंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको अपनी तारीफ नहीं करूंगा, एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि कल मैं बाइबल के ट्रांसलेशन को लेकर के कुछ मैटर ढूंढ रहा था ऑनलाइन। आप यू विल बी सरप्राइज, मुझे कहीं पर भी, हाँ मैं नजीर जी, मैं डेली लाइव आऊंगा और मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। मैंने कहा ना, मुझे आशीर्वाद देते रहिए आप लोग, ताकि और इसको स्प्रेड करते रहिए, ताकि अभी इंडिया में मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि इतनी बार नेट क्लियर किया हुआ ऑलरेडी एक टीचर है, और वो ऑलरेडी 20 सालों से सक्सेसफुली अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा है। तो कई लोगों को मेरे बारे में पता ही नहीं है, तो बेटर है कि हम दूसरों को भी बताएं। अच्छा, तो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, मैं भूल गया मैं क्या बात कर रहा था अभी। आप पोइट्री पढ़ना चाहते हैं ना, तो पोइट्री में बताइए मुझे क्या पढ़ना है। लालचंद मुझे देख रहा है, हेलो बेटा कैसे हो, तैयारी चल रही है आपकी आईएएस? बताइए मुझे आप लोग, आईज आर जस्ट वॉचिंग मी, यू मस्ट कन्वर्स ऑल्सो। क्या पढ़ना चाहते हो कल? क्या मैं चौसर से स्टार्ट कर दूं? शुड वी स्टार्ट विथ चौसर? So I will be talking about the language of Chaucer. I will be talking about Canterbury Tales. I will be talking about the other things of Chaucer. I might teach some original lines from the prologue of the Canterbury Tales from Chaucer. बताइए मुझे आपको क्या करना है। मैक्सिमम लोग मुझसे जुड़ेंगे तभी मैं पढ़ा पाऊंगा ढंग से। लगातार आपको चौसर पढ़ा देता हूं, और उसके बाद आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी। Why are you not answering? अरे आंसर करो यार नमिता जी। ब्रिटिश पोइट्री बहुत टफ लगती है। ब्रिटिश पोइट्री भी पढ़ा देंगे बेटा, लेकिन एक स्टार्टिंग तो होना चाहिए ना। डायरेक्टली वी कैन नॉट जंप टू द ब्रिटिश पोइट्री। दीपिका वर्मा, हेलो। अहमद जी, हिलाल अहमद, बताइए कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। रोहित डोंगर जी, क्या हम, बता दीजिए, ज्यादा बेटर चौसर से स्टार्ट करना है तो। पर सबसे पहले आप एक काम करेंगे, मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आपसे एक बेनिफिट चाहिए। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कम से कम 10-15 सब्सक्राइबर्स दें। डील है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स डोंट नो मी। आई मीन, मैं देख रहा हूं, मैं ये बता रहा था, ड्रैगन पे तो हम नहीं जंप करेंगे, हम सीधा जंप करेंगे, जंप नहीं करेंगे हम मूव स्टेप बाय स्टेप। वी शुड स्टार्ट फ्रॉम जॉफरी चौसर, सही रहेगा। नजीर जी भी बोल रहे हैं, नंदिता भी बोल रही है। देखिए सुनिए सब लोग, एक अपन प्लान बनाते हैं। मुझे आप क्या दे, तो
विद, नहीं नहीं मॉडर्न से हम स्टार्ट नहीं कर सकते बेटा। मॉडर्न के लिए तो फिर ऐसा करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं लेक्चर भी तो तैयार करूंगा ना। ठीक है, आई एम वेरी मच क्वालिफाइड, डज नॉट मीन दैट विदाउट प्रिपेयरिंग लेक्चर। अब देखिए, मैं आज सुबह अगर इस लेक्चर बोलना था तो मेरे पास टेबल पे जो पढ़ा था उसी पे मैंने अपनी राइटिंग तैयार की है पहले। तो एक असली टीचर वही होता है जो पहले तैयारी करे, हवा में तीर नहीं छोड़ने चाहिए। मुझे तो स्टार्ट करना है अभी, आई डोंट नो व्हाट टू रीड। ठीक है, देखिए आपकी अलग अलग राय है, बट ऐसा होता है ना, वोट्स जिसके ज़्यादा होते हैं उसको फॉलो किया जाता है। चौसर का जो वोट है वो ज़्यादा पढ़ रहा है, सो वी विल स्टार्ट विद। अच्छा, पहले इस बात को और सोचिए कि कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं तो ओरिजिनल लाइन पढ़ाऊंगा। तो क्या आपके पास लैपटॉप है पे जो मैं आपको सेंड करूंगा, या मैं आपको कहूंगा कि ये वाला टेक्स्ट निकाल लीजिए, बिकॉज चौसर है तो ओरिजिनल टेक्स्ट है विच इज टफ इन रीडिंग, और एक नोवम कॉग्निटिव तो इजी वर्जन है, तो वो मुझे आप याद दिला देना। व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हुए, जिन्होंने ऑनलाइन एडमिशन ले रखा है, वो मुझे रिमाइंड करा देना, मैं उनको भेज दूंगा। तो नोवम बेसिक मिडिल, फ्रॉम बेसिक मिडिल, हाँ दिस इज द राइट वे ऑफ मूविंग, पहले बेसिक फिर मिडिल और फिर हार्ड। अच्छा, तो पहले आप मेरे को ये प्रॉमिस करो कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब को खत्म करते ही जैसे ही कि 6 सब्सक्राइबर करवा दूंगी सर। सब्सक्राइब करवा दूंगी, हाँ भाई हाँ, क्योंकि जितने बच्चे मेरे से जुड़ेंगे उनको बेनिफिट में देना चाहता हूं। आप ये मत सोचो, देखिए एक बेसिक बात बताता हूं, मैं 45 साल का आदमी हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सब्सक्राइबर जुड़ने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई पैसा नहीं मिलने वाला मुझे, लेकिन मैं तो बेनिफिट दे सकता हूं ना। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे। आप पहले प्रॉमिस करो मिस्टर रोहित डोनगरकर जी कि आप मुझे 10 सब्सक्राइबर लाके देंगे। आप लोग क्या, और सब्सक्राइबर ऐसे नहीं चाहिए कि परिवार के मेंबर्स, स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिनको रियल में हेल्प हो। आप क्या करें, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप ढूंढ लीजिएगा, मैं दोबारा बता देता हूं, इंग्लिश लिटरेचर फॉर यूजीसी नेट बाय डॉक्टर मुकेश पारिक। हाँ, मैं खुद करता हूं एमसीक्यूज, मैं एमसीक्यूज खुद डिजाइन भी करता हूं, बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, उनमें चेंज करता हूं, पुराने क्वेश्चन पेपर से उठाता हूं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास एमसीक्यूज तैयार करने के, बट मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यूज देता हूं। एमसीक्यूज के तरफ ना भागें, एमसीक्यूज की बुक्स लिखना, एमसीक्यूज की तैयारी करना, थोड़ा दिमाग लगाइए। आप लोग मेरे को बताइए कि टॉपिक पढ़ने से वो याद रहेगा कि एमसीक्यू पढ़ने से याद रहे? एमसीक्यू से तो भूल जाओगे। अगर आप एक मैच्योर टीचर की बात सुनना चाहते हो, आई एम ऑलरेडी पीएचडी यार, तो आप मुझे बताइए कि कैसे एमसीक्यू से आप एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आपके टॉपिक क्लियर होने चाहिए। देखिए, एक आप यू शुड राइट दिस मंत्रा इन फ्रंट ऑफ योर टेबल, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप लोग इस बात को नहीं समझेंगे, आप टीचर बदलते रहेंगे, इस टीचर के पास भाग उस पे। टीचर बदलने से कुछ नहीं होगा, अपना माइंड सेट और अपना एफर्ट्स बदलने से होगा। और आप करके देखिए, आपको 4 दिन में ना बेनिफिट दिख जाए कि पारिक सर क्या बोल रहे हैं। मैं 20 सालों से इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, मुझे मालूम है कि बेनिफिट कैसे देते हैं। आप बेनिफिट लेने के लिए रेडी रहिए। पहले तो आप सभी लोग, एक तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़वाइए, नंबर 1, नंबर 2 अपने फ्रेंड्स को बताइए मेरे बारे में, और रियल सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझको, ठीक है। और मैं आपको ऐसे ही फ्री पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे। जो बच्चे और डिटेल में जाना चाहते हैं वो मुझे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सबको मालूम है कि एक ऑनलाइन क्लास में इस तरह से, और एक होता है डिटेल जो हम लोग लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कश्मीर से हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फेमिलराइज, एंड यस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा नजीर जी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। एक बार मैं अभी 1 साल 2 साल पहले मैं मलेशिया गया था, एक इंटरनेशनल सेमिनार में। मेरी जो एक फोटो आप देखते हो ना, एक बहुत बड़े पोस्ट कॉलोनियल राइटर के साथ, वो वही खिंचाई थी मैंने। तो वहां पे मेरे को कश्मीर के कुछ फ्रेंड्स बने थे, दोज हु आर टीचिंग इन कॉलेजेस एंड ऑल, दे वर हाईली इंप्रेस्ड विद मी, और उन्होंने कश्मीर आने के लिए। एंड लेट मी टेल यू दैट मेरा पूरा बचपन जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर में गया। मैं कठुआ में रहा हूं कई साल, और जब दुनिया कश्मीर के लिए तरसती थी तब मैं कश्मीर में घुमा हुआ हूं। टॉपिक क्लियर करके एमसीक्यू करने में बेटर, हाँ बिल्कुल, नमिता पंडित इज सेइंग वेरी करेक्ट। पहले टॉपिक क्लियर करें और फिर एमसीक्यू। एमसीक्यू अट्रैक्ट करते हैं, एमसीक्यू इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि एमसीक्यू का मतलब है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा, हमें आया नहीं तो हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उसमें। तो एमसीक्यू पढ़ने के बाद अगर आप, जैसे सुनो समझाता हूं, जैसे आज सुबह मेरे को किसी ने क्वेश्चन पूछा और मैंने देखा कि वो मुझे आता है, लेकिन मैंने देखा कि इस क्वेश्चन नहीं आता, तो मैंने
once we read about most of the things in literature, then what is the need of memorizing MCQs? यही कुमकुम, मैं भी यही कह रहा हूँ बेटा, तो नहीं है ना कि जो मैं द वे आई थिंक आई कैनॉट हर्ल अपॉन माई थिंकिंग अलग है, मेरी थिंकिंग अलग है, लेकिन का ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु का तो कहना मानना ही चाहिए। मैंने कई बार भुगता है कहना मान के, क्योंकि गुरु आपके ऊपर के होते हैं, आपसे वो चीज सोचते हैं जो आपके पास नहीं है। और अभी अनफॉर्चुनेटली द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एंड JRF, दे आर नॉट प्रोफेसर्स, दे आर एक्सपीरियंस्ड पीपल, दे आर न्यू कमर्स। मुझे न्यू कमर्स से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन न्यू कमर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सॉरी, मैं तो साफ कह रहा हूं। मेरी क्लास में कितने बच्चे आते हैं, वो बताते हैं कि हम फलानी जगह कोचिंग लेके आए थे, तो अगले ने नेट तो क्लियर कर रखी है, बट वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनको। तो ये बिल्कुल सही है, कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए मेरे पास बच्चे आते हैं। मुझे कुछ स्टूडेंट हैं, एक मेरी एक क्या दो अभी कई बच्चों में उस प्रभात ने मेरी क्लास को आके जब एड्रेस किया, तो उसने एक ही बात कही। उसको बार बार हमने कहा कि तू कुछ बता, टिप्स दे। उसने कहा केवल सर को फॉलो करो। तो कितने सारे अच्छे सिंसियर बच्चे मेरे से जुड़े रहते हैं, और वो जिंदगी भर जुड़े रहते हैं। नेट क्लियर करने के बाद भी वो मेरे से जुड़े रहते हैं। उनको फेलोशिप्स मिलती हैं, उनको वो आगे तरक्की करते हैं। कई विदेश भी चले गए, कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि, और मैं अब उनसे सीखने लगा हूं कि फॉलो करना चाहिए आपको। आप MCQs की तरफ ना भागें। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं। मैं कह रहा हूं MCQ बाद में तैयारी करते हैं, पहले टॉपिक पढ़ते हैं। MCQ पढ़ने से थोड़ी ना जरूरी है कि वही क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? मुश्किल से एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, कभी कभी रिपीट। एवरी टाइम दे आर रेडी विद न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो इसका मतलब है कि ये तो पहला लेक्चर है, मैं कल इतनी बकवास नहीं कर सकता। आई विल कम एंड स्टार्ट टीचिंग यू चौसर। तो चौसर का आप लोग कांटेक्ट करें मुझसे, और कल हम पढ़ेंगे चौसर की एज, सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस ऑफ चौसर, और हम ओरिजिनल टेक्स्ट भी पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि उसमें पेशेंस चाहिए होता है। तो स्किप करते हुए टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। और चौसर की आप मुझसे PDF डिमांड कर सकते हैं। जो मुझे मटेरियल दूंगा, जो ऑनलाइन ज्वाइन नहीं करेंगे, वो मैं मटेरियल के लिए मैं माफी चाहता हूं, हेल्प के तौर पर। बट अ लॉट मच मटेरियल जिसमें हमारी बहुत सालों की लेबर लगी हुई है, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। कुछ मदद मैं आपकी कर दूंगा। लाइव क्लासेस आप लीजिए मुझसे, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं हमेशा यही बताता हूं, जैसा मैं हूं वैसा मैं आपके सामने आऊंगा। आप बस हेल्प लीजिए मेरे से, ठीक है। चलिए, शुड वी कॉल इट अ डे नाउ? या चौसर, आप कहो तो मैं जाऊं अब? शुड वी कॉल इट अ डे? ओके देन, नमस्कार, हैव अ नाइस डे। ठीक है, आप जैसा अगर करोगे तो आपको सफलता, नहीं मानोगे कहना तो सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू।